Hello guys, I am Hitesh Tripathi and in this video we are going to see an editorial video of maximum product after k increment. Okay, so this is a question from weekly contest 288 और ये third question है, so you can say second medium question. Okay, but before starting this question, let me just tell you something about Newton School. So if you all have already visited newtonschool.co, you may already know about Newton School's full stack development course. So what they do in this course is they will train you, they will make you a full stack developer, and after that, not only this, they will also get you placed in these companies, okay, like Zomato, ThoughtWorks, Google, Xiaomi. So they will make you a full stack developer and then they will get you placed in these companies, and minimum CTC which they provide you is 5 lakh. Now most important thing about this program is that since its name is pay after placement, so it is very intuitive that you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies or in any company. Okay, so if you want to know more about this, you can just go to the link in description or contact in the contact number, or you can also just come in their website and apply now for free. Now second thing, if you haven't checked their launchpad initiative, you can just go and opt your courses for free and get the certificate after completion of any courses. Okay, in the end, before starting the video, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies, just go to YouTube, subscribe this, since I am posting regular videos in this YouTube channel, whether they are editorials, your daily life questions, or tech related questions or development related. Okay, you can get them here, so just go and subscribe the channel. अब ये वीडियो अगर पसंद आए, so you can share this video to your friends and also like this video. Now let's just start our today's video. Maximum product after k increments. You are given an array of non-negative integer nums and an integer k. In one operation you may choose any elements from nums and increment it by 1. Return the maximum product of numbers after at most k operations. Since the answer may be very large, return its modulo. Now question is quite clear. हमें करना क्या है, हमें एक array given है, हमें क्या करना है, हमें k increment operations कर सकते हैं. That is k increment operations मतलब we can increment any number by 1 and we can do these operations up to k times. Okay, और हमें exactly देना क्या है, हमें maximum product of nums array बताना है. Okay, fine. Now if you will see, there is a very simple logic behind this question. Okay, but before that let's just see constraints. Since nums of I value can be up to 10 raised 6, that's why while doing the product we have to take the modulo with 10 raised 9 plus 7. Okay, obviously अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा बड़ा प्रोडक्ट तो हमें उसको मॉडलो प्रिंट करवाना है. नाउ क्वेश्चन क्वाइट क्लियर है, हमें करना क्या है पहले वो देखते हैं, फिर कैसे करना है वो देखेंगे. ठीक है, हमें एक एरे गिवन है, ठीक, लो 2 5 6 7 8. ओके, एंड k इज इक्वल्स टू कितना है 5. नाउ अभी इस एरे का प्रोडक्ट करोगे तो कुछ x आया सपोज. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट मैं इस एरे में k इंक्रीमेंट ऑपरेशंस क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 2 को इंक्रीज कर दूंगा, 3 बना दूंगा. ठीक है, बिकॉज ये सबसे छोटा नंबर है. फाइन. वन मोर थिंग, एक मैं और एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि क्यों हमने सबसे पहले सबसे छोटे नंबर में इंक्रीमेंट किया. तो यू कैन सी हियर, सपोज मैं इस प्रोसेस को उल्टा करके देखता हूँ. ठीक है, सपोज मेरे पास एक ऑलरेडी सम था x जो कि था 6. ठीक है, उस सम से मैंने 2 नंबर्स बनाए, दैट इज 3 एंड 3. 3 का प्रोडक्ट कितना आएगा, कैन से 9. ओके, एंड इसी 6 से मैंने 2 नंबर्स बनाए 4 एंड 2. ठीक है, एंड इसका प्रोडक्ट आएगा 8. तो यू कैन सी कि द नंबर्स मोर क्लोजर टू ईच अदर, अगर उन दोनों का सम बराबर है, दैट इज अगर ये a और b है, ये a और b है, तो मोर बेसिक सा लॉजिक इसके पीछे क्या है, एक बहुत बड़े नंबर का और एक बहुत छोटे नंबर का प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी लेस देन 2 इक्वल नंबर्स. ओके, जहाँ पर इन दोनों नंबर्स का और इन दोनों नंबर्स का सम इक्वल है. ठीक है, ये था मेन लॉजिक. अब इस लॉजिक को तुम्हें इस एरे में कैसे लगाना है, ये मैंने तुम्हें रिवर्स लॉजिक समझाया है यहाँ पे. ठीक है, तुम्हें बस उसका रिवर्स कर देना है. दैट इज इफ यू वांट टू मेक प्रोडक्ट ऑफ दिस कंप्लीट एरे वेरी बिग, व्हाट यू हैव टू डू इज
तुम्हें जो छोटे नंबर्स हैं S2, ठीक है, उसको बड़ा बनाना है सच दैट, ऑब्वियसली तुम ये बड़े नंबर्स को छोटा तो बना नहीं सकते, ठीक है, तो तुम्हें जितने भी इंक्रीमेंट ऑपरेशंस हैं वो कैसे लगाने हैं ताकि जो तुम्हारे छोटे नंबर्स हैं वो अपने बड़े नंबर्स के बराबर में आ जाए, ठीक है, टू मेक द प्रोडक्ट बिग। नाउ तुम ये करोगे कैसे? सपोज यू हैव टू डू के ऑपरेशंस, ओके। अब तुम ये ऐसा तो कर नहीं सकते कि तुमने पांचों के पांचों ऑपरेशंस मिनिमम नंबर पे लगा दिए तो ये 7 बन गया, ये 3, ये 5, बट इन दिस केस ये 2 3 से, ठीक है, ये 2 3 से 7 3 बन गया। ये ऐसा भी बन सकता था, सपोज 5 5, ओके। अब तुम 7 3 का प्रोडक्ट देखोगे तो ये बनेगा 21, 5 5 का 25, दैट्स वाई ये जो ऑपरेशंस है, के इंक्रीमेंट ऑपरेशंस है, ये डायनेमिक होंगे। डायनेमिक इन द सेंस तुम सबसे पहले पहला ऑपरेशन करोगे, ठीक है, पहला ऑपरेशन करने के बाद तुम्हारे पास एरे क्या बन के आती है वो देखते हैं। पहला ऑपरेशन करने के बाद तुम्हारी एरे बनी कुछ ऐसी। अब तुम फिर से इस एरे में मिनिमम देखोगे, फिर से मिनिमम 3 मिला, फिर से ऑपरेशन कर दो, जस्ट इरेज दिस फ्रॉम 4 3 5 6 7 8, ठीक है। अब अगेन इस एरे में मिनिमम देखो, 3 मिला, क्योंकि तुम्हें करना क्या है एग्जैक्टली, जो छोटे नंबर्स हैं उनको बड़ा बनाना है। सबसे छोटा नंबर 3 है, उसको बड़ा कर दो, 4 4 5 6 7 8। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जाम्पल। तुम कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से ले लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन अगर करना है तो सबसे छोटा नंबर 4 है, 5 4 5 6 7 8, लास्ट ऑपरेशन विल बी इस 4 को बड़ा कर दो, ठीक है। तुम इस तरह से ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। के बाद तुम्हें अब ये तो पता चल गया, जब मैंने सारे ऑपरेशंस कर लिए इसका जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। अब ये तुम करने कैसे वाले हो? सिंस टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस मुझे कितने करने पड़े? 5, ठीक है, तो मुझे के में इटरेशन तो करना ही करना है, तो मेरी छोटी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ के। उसके बाद मैं मिनिमम कैसे फाइंड करता हूँ ये डिपेंड करता है, ठीक है। मैं मिनिमम कैसे फाइंड कर सकता हूँ? फॉर फाइंडिंग मिनिमम एंड अपडेट इट्स वैल्यू विद +1, ठीक है, मुझे मिनिमम फाइंड करना है, फिर उस मिनिमम की वैल्यू को +1 करके वापस उस एरे में पुट भी करना है। फॉर दिस व्हाट आई कैन यूज इज प्रायोरिटी क्यू, मीन ही प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू, और वो भी मिन हीप। अगर तुमने प्रायोरिटी क्यू मिन हीप नहीं पढ़ा है, यू कैन जस्ट गो टू गूगल, यू कैन सर्च इट, ओके। और अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन अगेन। तो बेसिकली प्रायोरिटी क्यू करता क्या है, ये क्यू तुम्हारा क्यू होता है बट मिन हीप होती है, ठीक है। मिन हीप में होगा क्या, सबसे छोटा एलिमेंट सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे उससे बड़ा, उसके नीचे उससे बड़ा, और O ऑफ 1 में तुम सबसे मिनिमम एलिमेंट निकाल सकते हो। और जब पुट करोगे तुम दूसरा एलिमेंट, ऑब्वियसली तुम मिनिमम एलिमेंट निकालोगे, ठीक है, उसमें +1 करोगे, अब तुम्हें वापस इसमें डालना है ना, तो इनका जो रीअरेंजमेंट होगा वो log n में हो जाएगा। तो बेसिकली तुम O ऑफ के, तुम्हें टोटल ऑपरेशन कितने करने के, तो तुम के log k कॉम्प्लेक्सिटी यूज, ठीक है, क्योंकि तुम k टाइम्स इसमें इंसर्शन करोगे नंबर चेंज करके, ठीक है, तो log k में होगा। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर ली हमने ये डिस्कस कर लिया कि प्रायोरिटी क्यू यूज़ करना है, और हमने क्यों करना है इसका भी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया। अब इसके बाद हम इसका कोड देखते हैं। कोड देखने के पहले तुम कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हो, जैसे 0 4 था, ठीक है, k = 5 था। अब मैं ऑब्वियसली सबसे पहले मिनिमम 0 था, उसमें +1 बढ़ा दो, दैट इज़ 1 4, देन 2 4, देन 3 4, देन 4 4, लास्ट ऑपरेशन तुम किसी एक 4 में भी इंक्रीमेंट कर सकते हो, दैट इज़ 5 4, तो 5 4 आंसर। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अगर मिनिमम देखो 2 है, 2 में तुमने 1 इंक्री किया, दैट इज़ 3। अब तुम्हारे पास 3 टाइम्स 3 आ जाएगा, तुम किसी भी 3 में इंक्रीमेंट कर सकते हो, इन्होंने इस वाले 3 में इंक्रीमेंट किया, योर फाइनल एरे विल बी दिस, एंड इन द एंड यू हैव टू प्रिंट द प्रोडक्ट आफ्टर टेकिंग मॉडुलो, ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स जस्ट सी कोड ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैंने सबसे पहले ले लिया मॉड, दैट इज 1e9 + 7, तुम 10⁻9 + 7 भी बोल सकते हो इसे। फिर मैंने मिन ही प्रायोरिटी क्यू लिया, उसका सिंटेक्स अगर तुम प्रायोरिटी क्यू पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा ऑलरेडी। मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स इनिशियली प्रायोरिटी क्यू में पुट कर दिए। उसके बाद मैंने k टाइम्स लूप चलाया, हर लूप पे मैंने मिनिमम एलिमेंट निकाला टॉप से, उसको पॉप कर दिया,
उसमें +1 कर दिया और उसको वापस से Q में पुट कर दिया और K में माइनस माइनस कर दिया, दैट इज K की वैल्यू अब 1 से डिक्री हो जाएगी। आंसर को 1 से इनिशियलाइज किया और अपने Q में इटरेट किया ऑब्वियसली, और Q का मुझे क्या चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका प्रोडक्ट, तो उनका प्रोडक्ट करते जाओ और वहीं पे मॉडुलो ऑपरेशन लगाते जाओ। इन द एंड जस्ट प्रिंट योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन अगेन, एंड if you haven't seen Newton School pay after program rate, just go and see that, okay? और अगर तुम्हें अप्लाई करना है you can just go to the link in description also, और तुम कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तुम्हें फॉलो अप मिल जाएगा। और अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है जिसमें तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, you can just ask me in comment section, put the link of question in comment, I will explain you by a video or something. And in the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go in YouTube, subscribe this YouTube channel, and like this video and share this video to your friends also. Thank you guys for watching.